With that and shift our focus to some developments that are taking place in the national capital, where Delhi's air quality remains a pressing concern as AQI remains in the very poor category. GRAP 4 measures have been intensified, mandating 50% work from home policies and offices and strict curbs on education institutions to combat pollution. The minimum temperature has dipped to a season low of 11.2 degrees Celsius, while visibility showed signs of improvement. A draft report on a 2021 emission inventory by TERI pointed out that vehicles are the largest emitters of PM 2.5 in Delhi, making up to 47% of the total emission. Joining us at this point of time is my colleague Aditya Kumar. He joins us live from New Delhi. Mahinder Mahi joins us from Noida. Anil Chaudhary joins us from Ghaziabad. Before we hop across to our reporters, let's quickly give you an understanding on the numbers that are being tracked today. Let's start off with New Delhi, where at the US Embassy, at this point of time, the AQI is 330. Let's take you through Major Dhyan Chand, where at this point of time it's 387. Pusa Road, 311 is the number that we are looking at. 360 also being seen. Anand Vihar, we of course every day we talk about Anand Vihar, and it's never looking too good. And again today it's at 487. That's shocking and alarming as well. Let's take you through IIT Shadra, where at this point of time it's 425. We see a lot of numbers here in the 400 mark, touching the 500 mark in fact. So that's again alarming. Sonia Vihar at this point of time 427. Where is it? 445. It's Satyavati College. 425 at this point of time. 444 is also a number that we are in fact tracking for you. IIT Jahangirpuri 482. 426 is also a number that we see over here at Shahid Sukhdev. 307 is also a number that we are tracking for you from Dunka, where at this point of time, again these numbers right now, okay, slightly looking better over here. 280 is again a number that we are tracking for you. Let's also now quickly hop across to this side, where 401 is also the number that we are tracking for you. Sri Aurobindo Mark 335 is the number that we're seeing. RK Puram 395. Again, shocking numbers there. Sector 125 of Noida 222, 416 at Dr. Karni is being recorded. So we of course see these numbers right now oscillating in the 400 figures. That's not too good, despite GRAP 4 being imposed. Let's start off this discussion with my colleague Aditya Kumar, who joins us from New Delhi. Aditya, what exactly is the situation on ground? I can see, of course, behind you, we can see smog over there. And of course, the temperature has now dropped to 11.2. That's been recorded. So that's, of course, going to also have an impact on the overall situation on ground. जी, आपने सही कहा। जिस तरीके से स्थिति है दिल्ली एनसीआर, मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए जिस तरीके से मोटा चादर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये धुंध की मोटी चादर है, जो साफ तौर से कहीं न कहीं ये जो है पर्यावरण को नुकसान तो कर ही रहा है, साथ ही जो मानवीय शरीर है, जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी काफी दिक्कत लोगों को हो रही है। अब बात करें ग्रैप 4 की, तो ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी, जैसे ग्रैप 1 जिस तरीके से लागू हुआ, ग्रैप 2, ग्रैप 3 जिस तरीके से लागू हुआ, और ग्रैप 4 की तरफ हम बढ़े, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया है दिल्ली सरकार को कि इतना देर क्यों लगाया गया ग्रैप 4 लागू होने में। और ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी स्थिति जो है वो साफ नहीं है कि किस तरीके से और आगे की प्लानिंग हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण लगातार खराब होता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत लोगों को हो रही है। हॉस्पिटल में जो है पंक्तिबद्ध लोगों को होकर के लोग अपने इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि आरएमएल अस्पताल जो है, उन्होंने एक अलग ओपीडी तैयार किया है, ओपीडी शुरू किया है। उसमें लोग जो हैं, जो पोल्यूशन के मारे लोग हैं, जो पोल्यूशन के दिक्कत से जो झेल रहे लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं, और ये लगातार जो है दिक्कत हो रही है। तमाम उपाय की बात की जा रही है कि उपाय किए जा रहे हैं, जैसे वाटर स्प्रिंकलर्स के माध्यम से पानी का छिड़काव करने की बात भी की जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आबो हवा खराब हो रही है, लगातार पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। साथ ही ये भी आदेश दिए गए कि स्कूल जो है वो बंद किए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेज जो है लागू किए जाए। साथ ही जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम। और एक बात और आज जो खास बताई गई है कि जिस तरीके से
कर्मचारियों की जरूरत है ऑफिस में, वैसी स्थिति में टाइमिंग भी चेंज की जाएगी ऑफिसों की। यानी कि किसी सरकारी जो ऑफिस है वहां पर अगर किसी कर्मचारी को 10 बजे आना है, कोई ऐसे कर्मचारी है जिनको 12 बजे तक काम उनकी शुरुआत होती है, तो उनकी टाइमिंग में भी चेंज करने के बाद जो है ये सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। जैसे आपने बताया कि आनंद विहार का 400 450 के पार है, जहांगीरपुरी का जो इलाका है वहां पर भी 450 के पार है। तो जितने भी अब कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक जरूर हुआ है, लेकिन वो भी ठीक सिर्फ हम कह सकते हैं क्योंकि आंकड़े पहले बहुत ज्यादा थे, उसके बाद कुछ कम हुए हैं। तो हम आंकड़े की तुलना जब करते हैं तब ये समझ में आता है कुछ आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा। जो WHO पेश करती है रिपोर्ट जिसके अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एक स्वच्छ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, उससे कई गुना ज्यादा अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जो कि मानवीय शरीर पर बहुत इसका खराब असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में तमाम जो वादे हैं वो सच होता दिखाई नहीं दे रहा। जो वादे किए गए थे, जो दावे किए जा रहे थे, उसकी जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और जो है दिखाई। कई ऐसे मामले हैं, लगातार कई ऐसे चालान काटे जा रहे हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन के काम जबकि प्रतिबंधित है, फिर भी कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो किए जा रहे हैं। कई ऐसी जगह जहां पर मिट्टी की ढलाई जो है वो शुरू हुआ है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि धरातल पे जो भी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आंकड़े अगर सच बोल रहे होते, सरकारी दावे जो है वो अगर सच बोल रहे होते, तो आंकड़े जरूर ठीक होते। आंकड़े खराब है, यानी कि सरकारी दावे जो है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। जी Absolutely. In fact, Mahinder Mahi also joins us at this point of time from Noida. Mahinder, sthiti kya hai abhi? Okay, Mahinder is just joining us in a minute. Anil is with us on the broadcast from Ghaziabad. Anil, show us around. Give us the entire, what is it looking like at this point of time? And if you have people around you, also have a word with them and give us an understanding on what it is that they are facing. बिल्कुल कुछ राहत आज मिल गई है पोल्यूशन से गाजियाबाद के लोगों को, पर कुछ एरिया अभी भी गाजियाबाद के ऐसे हैं जो पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ लोनी का इलाका, वहां पर जो एयर की क्वालिटी है बेहद खराब बनी हुई है। साथ ही वसुंधरा की बात करें तो 338 एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर दर्ज किया जा रहा है। पर लोनी जैसे मैंने बताया बीते एक दिन पहले 500 के पास एयर की क्वालिटी वहां पर दर्ज की गई थी। पर फिलहाल राहत मिली है क्योंकि बीते रात से हवा चली है और हवा के साथ साथ जो कोहरा है वो भी छटा है, साथ ही पोल्यूशन में भी थोड़ी सी राहत मिली है। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त 9 से ऊपर का समय है और ऐसे में धूप निकली हुई है खिलखिलाती। लोगों को जिस तरीके से विजुअलिटी में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बीते कल की बात करें, उससे पहले एक दिन पहले की बात करें तो सड़कों पर 20 मीटर की जो है विजुअलिटी रह गई थी। लोगों को बेहद परेशानी हो रही थी सड़कों पर और साथ ही पोल्यूशन की मार भी जनता झेल रही थी। तो कहीं ना कहीं आज राहत मिलती हुई नजर आई है। तो वहीं ऐसे में बात करें अदिति All right, we're facing some technical issues over there, but we saw this situation on the ground. Unfortunately, there are still reports that are saying that the reason for pollution in the national capital is vehicular pollution. That's not the case, ladies and gentlemen. There have been many thousands of parali burning instances, and at this point of time what we do require is not the tutu meme between the politicians. We don't want netabazi right now. What we want is a plan of action that gives us an opportunity to finally breathe some fresh air. We're of course hoping for that to happen in the next couple of days. On that note, I thank both my reporters for joining us at this point of time. We leave it there and shift our focus